our stadium Bhivandi is going to be Manoj Bhair open the bowling attack, most economical bowler. And what a over he bowl against Mahindra. Against Mahindra Sports in Mapoli Cricket Dhamaka against Bilal. He given away only 1 run and previous 5 overs. Totally 98 runs. Manoj Bhair, one of the key bowler, Manoj Bhair and Uzair, these two are the wicket taker bowler in this season. Well, 198 runs in that semi-final game in 12 overs, and Manoj Bhair started the proceeding there. He bowled magnificent first over, just 1 run. Yes, why does there is a very expensive spell from Bhavesh Pawar, who given away in this season the expensive spell, 2 overs 50 runs. Manoj Bhair, Jayesh Patil right on the mid-wicket boundary, one of the excellent outfielder, and Shekhar Dalvi, who made a half century in this season, is long on. 2 men outside the ring, and here goes Manoj Bhair. Left arm round wicket to Kamruddin. Left arm round wicket. Goes to Kamar, drive, good looking stroke. But equally stopped from Shekhar Dalvi. This is the confident looking stroke from batsman Kamar, who picks on the off volley and straight drive past the bowler. That was a juicy half volley and positive intent on very first ball by Kamruddin. After a long time, Gaja with us in our commentary box. It's very good to see him in the commentary box. Yes. And here we watch Manoj Bhair, facing him Ashok Matre. Here we go. Typical bowling action, one of the economical bowlers since from 4 or 5 seasons. Here we go. This time drive, nice looking stroke to mid off. Jayesh Patil, yes, thrumbling there. But batsmen take only single. Both are open their account with a confident looking drive, middle of the bat. And Manoj Bhair in this over is struggling to get his length right. I think he's searching for the Yorker there. Manoj Bhair. Manoj, left arm round wicket. This time another full toss, drive straight to extra cover, need a direct hit. Akhtar is there. And there is a overthrow, well back up from Vicky Matre. 1-2 score now. Runs coming in form of singles. 3 for no wicket, 2 to Kamar, 1 to Ashok Matre. 3 very good drives from both the batsmen, but not much of a placement behind the stroke. Manoj reaches bowling mark, turn from VIP end and facing him Ashok Matre. 2 men outside the ring. Kumar at wideish mid wicket and long off is Bhavesh Pawar, the Arfan Maula Khilari. Manoj goes to Ashok, this time beats him outside here for stump, fuller length. This is the special weapon of Manoj Bhair. Lovely delivery. First dot ball of the match. Only 3 runs on the board so far. Have a look at that. They try to play with the cross bat. Manoj reaches bowling mark, left arm round wicket facing him Ashok Matre. Here we go. Goes passes. So far economical in the first over. This time Matre drive, half chance. Drop on his follow through. There is a half and tough chance. One-handed try to take in, but put down. It's never easy for the bowler to take that kind of catch. He was on his follow through.
5 for no wicket. Manoj Bhoir turn from VIP end. Goes past us. 4 for no wicket. Runs coming in form of singles. Facing him, Kamar. Goes to Kamar, slogging. Jayesh Patil is there. Oh, he is one of the best fielder. Taken a very simply a difficult chance, and Kamar on his way. And finally, wicket taker takes a wicket here. Manoj Bhoir is happy. Good catch in the deep by Jayesh Patil. Yes, Jayesh Patil is there, and that marks end of the economical over from Manoj Bhoir. Look at that, magnificently taken by Jayesh Patil. Well judging there. Safe pair of hands. So Jani Sports have lost their first wicket. Kamruddin is out for only 2, and after first over, it's 4, loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 4 रन. फिर से विकेट टेकर गेंदबाज मनोज भोयर विकेट दिलाते हुए. अगर इस सीजन की हम बात करें तो विकेटें जहां तक ज्यादा लेने का ताल्लुक है, मनोज भोयर और उजैर 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो सबसे ज्यादा विकेटें ले रहे हैं इस सीजन में. ये देखिए आपके बीच में सलीम सिद्दीकी, हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर, अध्यक्ष हैं भिवंडी शहर जिला पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के. साथ में नामदेव अहरे साहब, इरफान मलिक, हाजी, खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से भावेश पवार. भावेश पवार बल्ले से बहुत ज्यादा फॉर्म में, लेकिन गेंदबाजी से पिछले साल के जितने भी हीरो गेंदबाज हैं, अगर मनोज भोयर को हम निकाल दे तो सब इस सीजन में 0 साबित हुए अभी तक. कुछ दिक्कतें रही है भावेश पवार के लिए भी गेंद के साथ इस सत्र में. हालांकि बड़े खिलाड़ी हैं, कभी भी वापसी कर सकते हैं. ये देखिए पहली गेंद ज्यादा पटक दी वहां पर, रीच के बाहर, वाइट. 1 ऑफ द ओवर वहां पे इशारा कर रहे हैं फारूक बर्डी के, एक आप बाउंसर कर चुके. बाउंसर किया और जाया कर दिया उसको क्योंकि वाइड हो गई. इस मरतबा ड्राइव किया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ. बढ़िया फील्डिंग वहां पर, चीते की तरह झपटे थे. महेंद्र मागे मेरे ख्याल से वहां पर है. ये तो गजब के फॉर्म में. इनको जब बेचते हैं बोलते हैं आपको काम एक दिया गया है, पूरा कर देते हैं. जब टीम में बहुत बड़े नाम हो तो कहीं ना कहीं महेंद्र मागे खेलने पीछे आते हैं, लेकिन काम तो सब फ्रंट का करते हैं. जी हाँ, फुटवर्क बहुत ही शानदार रहता है उनका बल्लेबाजी में. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक भी बहुत अच्छा खेलते हैं. और यही कारण था कि हरीश पाटिल फंस गए. हरीश पाटिल समझे थे कि वो वेट करके खेलेंगे, और उन्होंने तो डबल स्टेप पे गेंद को ले लिया. आजकल वीडियोस अवेलेबल हैं तो बहुत कुछ देखा जा रहा है. भावेश पवार, पटकी भी गेंद, अजीबो गरीब शॉट खेला है वहां पर. 2 रन पूरे के बैट्समैन ने. आड़े बैट से सामने की तरफ खेला था. पावर प्ले का लाभ मिलता हुआ इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब. गेंदबाज के ऊपर से भी खेला था तो सुरक्षित शॉट था. स्कोर इस समय 8 रन. कपिल सामना करे भावेश पवार का. फिर से पटका और अब नो बॉल दिया है, और देखना है क्या फ्री हिट. इससे पहले एक बाउंसर कर चुके थे. कहीं ना कहीं भावेश पवार तेज गेंदबाजी करने में चूक रहे हैं. फ्री हिट, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. फायदा नहीं उठा पाए कपिल फ्री हिट का. 2 रन बनाकर खेल रहे इस समय. अशोक म्हात्रे खेल रहे 3 रन बनाकर. अशोक म्हात्रे काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं. भावेश पवार इस मरतबा पंच किया है गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ.
बढ़िया फील्डिंग वहां पे, बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे। फील्डिंग भी लाजवाब है धनेश कुकसे की। स्लैप किया था, थप्पड़ लगाया था गेंद पर। बड़े विचित्र स्ट्रोक्स खेल रहे हैं कपिल इस समय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है। इस मरतबा इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, गेंद की तेजी को नहीं भांप पाए। गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। बहुत कुछ करने की कोशिश बैट्समैन की, रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर से पंच किया है इनफील्ड के ऊपर से। इस मरतबा गेंद जाएंगी डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइटिश लॉन्ग ऑफ के बीच में 4 रन। ये काफी आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। महत्वपूर्ण 4 रन आते हुए जानी स्पोर्ट्स के लिए मैच में लगने वाला पहला चौका। 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन। ये देखिए किस तरह से 15 रन हो चुके हैं, 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। आखिरकार फिर महंगे साबित हुए भावेश पवार, 11 रन दे डाले। कुल मिलाकर 8 गेंदें की उन्होंने अपने ओवर में। अब अख्तर शेख आ रहे हैं। इनके लिए भी तो कठिनाई आ रही है इस सत्र में। नहीं, अख्तर शेख के तो पीछे गैसुद्दीन शेख मानो पीछे पड़ गए। जहां भी अख्तर शेख गैसुद्दीन के सामने आते हैं, 2 से 3 तो बाहर चले जाते हैं। और साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 2 बार गैसुद्दीन को आउट भी किया है उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने देखा कि जो एक तरफा फाइनल मुकाबला था जो चल रहा था आगरी राजा कप में, वहां भी गैसुद्दीन ने उनकी अच्छी खबर ली। और मापोली में तो आपको पता है कि वो सिक्सर कहाँ जा रहे थे। तो बहुत से बैटल चल रहे हैं आजकल, मतलब निजी बैटल भी चल रहे हैं भिवंडी टेनिस क्रिकेट में। यस, एब्सोल्युटली। और हमारा तो कर्तव्य है कि जो चला है उसको कहना है। पहली गेंद आते ही गेंद को स्वंग कर दिया आसमान में, 6 रन। बिल्कुल पर्दे पर जाकर गिरी गेंद। अशोक मात्रे का ये ट्रेडमार्क शॉट है, ऑन साइड में अच्छा खेलते हैं। और एक जमाना था कि अशोक मात्रे बहुत अच्छे स्ट्राइकर रहे हैं, आज भी उनमें दमखम बाकी है। विद टाइट स्वंग कर दिया था गैप में 6 रनों के लिए, नाप तोल के मारा हुआ 6। 21 पे पहुंचा स्कोर जानी स्पोर्ट्स का। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से ऑफ स्टंप के पार से खींच के मारने की कोशिश। गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। इस बार फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, क्रीज में से ही खेलने की कोशिश की थी। चतुराई भरी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, फुल रखा था अख्तर शेख ने। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद चिप की हवा में। शेखर दलवी की बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच छूटा वहां पर। 2 रन पूरे किए, बहुत दूर से आए थे शेखर दलवी कैच पर। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रन। कैच लेते यदि शेखर दलवी तो बहुत अच्छा कैच होता ये, काफी दूरी तय की थी उन्होंने। 23 रन हो चुके हैं। अख्तर शेख बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था, ऊपर खेल बैठे बैट्समैन, क्रीज बॉक्स से खेला था, पैरों में हलचल नहीं थी। टेंटेटिव फुटवर्क, वैसे भी ज्यादा फुटवर्क देखने को मिलता नहीं है जब अशोक मात्रे बल्लेबाजी करते हैं। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। बिल्कुल आई साइड बैट्समैन है, जिस तरह सदा गोपानन रमेश थे भारत के, उन्हें आई साइड बैट्समैन कहा जाता था। अधिकांश शॉट क्रीज बॉक्स से खेलते थे। इस मरतबा दूर किया वहां पर वाइट। फिर से अख्तर की कोशिश वही कि ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन दिशाहीन कर बैठे। 9 रन आ चुके इस ओवर से अभी तक। अख्तर शेख
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अशोक के लिए। इस मरतबा विधि टाइट स्वंग किया, भावेश पवार गेंद पे पहुंचे, 1 रन बनाया बैट्समैन ने। कुल मिलाकर 25 रन हो चुके हैं 1 विकेट कमाने के बाद। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर चल रहा है। कहीं ना कहीं जब शाम ढल जाती है तो फिर रन बनाना उतना आसान नहीं रहता है। हालांकि कल शाम में भी रन फेस्टिवल रहा था और उसका जवाब भी अच्छा दिया था प्रिंस मूवीज ने। इस टूर्नामेंट की खासियत यह है कि बाउंड्रीज को छोटा कर दिया गया है, उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि 70 के ऊपर भी यदि रन बन रहे हैं तो चेस हो रहे हैं लगभग। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए कपिल के लिए। इस मरतबा धीमी गेंद थी, पुल कर दिया, फील्डर मौजूद है कुमार। 1 रन बनता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 पर। कुल मिलाकर 11 रन आए इस ओवर से भी। पिछले ओवर में भी 11 रन बने थे, तो अच्छी रफ्तार यहाँ पर पकड़ी हुई है दोनों भी बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, 3 ओवर की समाप्ति 26 रन, और 3 ओवर में कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहेंगी जानी स्पोर्ट्स के लगभग 60 के करीब या 55 के करीब पहुंचा जाए। क्या होता है बताएंगे आप तक अजय घरत। छब्बीस रन 3 ओवर्स में। आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस का ये नज़ारा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स भी है वहाँ पर। फोकसमैन हाजी नज़र आते हुए, अखिल जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। खूबसूरत नज़ारा। स्टेज बहुत अच्छा बनाया गया है टूर्नामेंट के लिए। जो वीआईपी डाइस है वो बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम का नज़ारा। आप देख रहे हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017। भवेश पवार आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। सफलता नहीं मिली है उनको अभी तक। एकमात्र विकेट जो गिरा है वो मनोज के खाते में। पटकी हुई गेंद पंच किया बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन स्वीपर मौजूद है ऑफ साइड में। पहले बाउंस पर फील्ड किया, सिर्फ 1 ही रन वहां पर कपिल को मिलता हुआ। पहले विकेट का पतन जो हुआ था 4 के स्कोर पर, 23 रनों की अब ये साझेदारी हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। पारी को पेस किस तरह से यहां से करेंगे ये रोचक बात रहेगी खेल में। दोनों भी बल्लेबाज अच्छे हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। कपिल जिनके पास अनुभव उतना नहीं है, लेकिन काफी अनुभव अशोक म्हात्रे के पास है। बल्ले का मोटा सिरा आउट। आसान सा कैच जयेश वखारे के लिए। ये भी बैट्समैन गली के चक्कर में आउट हुए। पीछे हटे थे, गली से खेलना चाहते थे, गली पे आउट हो गए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि महबूब की गली और क्रिकेट की गली दोनों में खतरा बराबर रहता है। गली के चक्कर अच्छे नहीं है। हालांकि काफी जगह थी, उछालता गेंद में, ऊपरी सिरा लगा बल्ले का और गली में एक आसान सा कैच वहां पर जयेश वखारे के लिए। जयेश वखारे भी खेल रहे हैं, तो बायत के एक और गेंदबाज विकल्प के तौर पर है धनेश 11 के पास। मनोज भोईर को हमने देखा है, भावेश पवार इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अख्तर वो भी बायत के गेंदबाज, तो काफी बायत के गेंदबाज है जिस तरह से जानवी स्पोर्ट्स के पास है। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन हरेश आए हैं। पैरों पर आती हुई गेंद मोड़ दिया है कलाइयों के सहारे। डीप में खिलाड़ी तैनात है। काफी अच्छी आवाज निकली थी जब गेंद बल्ले पर लगी लेकिन थी। अच्छी सोच है वहां पे भावेश पवार के नए बैट्समैन के आगे रखा था गेंद को, फुटवर्क को चेक करना चाहता, लेकिन बैकलिफ को नीचा करके बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफिस टोस खेला था बैट्समैन ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट।
इस बार उछाल दिया है गेंद को, फील्डर वहां पर कोई गलती नहीं की शेखर दलवी ने। इससे पहले एक कैच छूटा था, लेकिन इस बार बहुत ही आसानी से उसको कैच करते हुए एक और सफलता मिलती हुई कैप्टन भवेश पवार को। ये देखिए ऊंची बैकलिफ्ट ली थी, गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं थे, लगभग ऑन द राइज ही खेला था उसको। संतुलन ठीक नहीं था बैट्समैन का, सिर आसमान में, गेंद ऊपर चली गई थी। अच्छा कैच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शेखर दलवी ने लिया। 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जानी स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज तुषार आए हैं, एक रन बनाकर खेल रहे हैं हरेश। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया उसको, डीप में खिलाड़ी तैनात है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक ही रन। शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस सत्र में भवेश पवार अपनी गेंदों में, अपनी गेंदबाजी में। रफ्तार है उनके पास, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर मार भी पड़ी है। ये ओवर काफी अच्छा भवेश पवार के लिए अभी तक। बहुत बढ़िया गेंद आगे रखा था, वेट कर रहे थे बैकफुट पर, शायद शॉर्ट पिच गेंद का वेट कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन सोच वहां पर भवेश पवार की। फुलर लेंथ की गेंद थी, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, सफल ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 29 पर 3 जानी स्पोर्ट्स। इस समय भिनार से जीतू भोईर ने ऑल द बेस्ट कहा है धनेश 11 को। दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई थी, लेकिन जैसे ही अशोक म्हात्रे आउट हुए, कपिल भी उनके पीछे ही चले गए। बहुत ही दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर भटक गए थे अख्तर शेख। दो ओवर का खेल अब केवल बचा है जानी स्पोर्ट्स की पारी में। नो बॉल का इशारा, बीमर मिस टाइम शॉट, दूसरे रन की कोशिश होती हुई और आसानी से 2 रन पूरे। ओवर थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप किया है वहां पर मनोज भोईर ने। नो बॉल और फ्री हिट। पहली गेंद भी काफी खराब थी, वाइड। उसके बाद ये ऊंची फुल टॉस गेंद, जिसको बीमर घोषित किया अंपायर ने। यहां से 20-25 रन जरूर बनाना चाहेंगे जानी स्पोर्ट्स के बैट्समैन। बॉलर की दिशा में ड्राइव किया, कोई रन नहीं, फ्री हिट का लाभ नहीं उठा पाए। मजबूर किया था वहां पर हरेश को गेंदबाज अख्तर शेख ने उनकी तरफ ही खेलने के लिए। लेफ्ट अप राउंड द विकेट पेविलियन छोर से। इस बार हाफ वाली में लेकर उछाल दिया है, 6 रन, स्टैंड्स में जाती हुई गेंद। मानो अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था वहां पे बैट्समैन ने, हरीश ने, टीम के कप्तान है। और ये देखिए, जैसे ही गेंद ने जहां टिप्पा खाए वहीं से उठा दिया।
सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था, टाइमिंग बेमिसाल और गेंद का बुरा हाल। स्कोर 39, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से अख्तर शेख, एक और, एक और, ये तो बहुत ऊपर चली गई है। आसमानी शॉट, 6 रन। आसमानी तूफानी छक्का और अख्तर शेख हो गए हक्का बक्का। ये देखेंगे हम रिप्ले में, ये तो बहुत ऊंची गई है। मिडल ऑफ द बैट, फुल फेस ऑफ द बैट उस शॉट को खेला है। ये देखिए फिर से अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया, फ्रंट लेग को अलग किया और ये देखिए आसमान में गगनचुंबी। यहां तो एरोस्टेस के लिए भी चांस था। हालांकि दोपहर के सत्र में हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा था, इस वक्त कोई प्लेन जाता तो निश्चित रूप से मौका बन सकता था एयर होस्टेस के पास। शानदार बल्लेबाजी, बॉटम हैंड का जबरदस्त उपयोग, 2 गेंदों पर 2 दे डाले हैं और दोनों शॉट भी कितने गजब के। पहला शॉट बिल्कुल स्टैंड में गया और दूसरा शॉट तो मानो आसमान से बातें करता था। हवा में हिचकोले खाती हुई गेंद चली गई थी। गगनभेदी छक्का, छक्कों की हैट्रिक का मौका यहां पर हरीश के पास। स्कोर है 45 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा ओवर, फुल टॉस, बॉलर की सिर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन को सीधा रखा था, खुद कैप्टन है वहां पर। केवल 1 रन, बिल्कुल भी नियंत्रण में नजर नहीं आए हैं अख्तर शेख इस ओवर में। एक खर्चीला स्पेल उनका साबित होता हुआ। सत्रह रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं। कुल मिलाकर 28 रन अख्तर के स्पेल में बने हैं। यह भी मौका था लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं थी। खेलना चाहते थे, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन सामने की तरफ चली गई थी। कल दोस्तों जो मुकाबले रहेंगे देखना ना भूलिए। महिंद्रा स्पोर्ट बनाम विकी स्पोर्ट चाविंद्रा, बालाजी स्पोर्ट बनाम उस्मानिया। तीसरा मुकाबला युतिका स्पोर्ट बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। चौथा जानवी स्पोर्ट और एचएस स्पोर्ट। पांचवा सरकार स्पोर्ट और मैगी ए। और आखिरी मुकाबला मयूरेश स्पोर्ट और गौसिया स्पोर्ट। बाकी एक बात है कि जानी टीम ने पिछले कुछ शॉट पे मजा लाई क्योंकि गजा हमारे बीच में। अच्छा काउंटर अटैक कैप्टन ने किया है। अब स्ट्राइक तुषार के पास, क्लीन बोल्ड, जबरदस्त गेंद, सफलता मिलती हुई अख्तर शेख को।
ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद थी, ज़्यादा उछाल नहीं था, मेन किनारा लगा था बल्ले का। पीछा कर रहे थे कैप्टन हरीश। 19 रनों की एक अच्छी पारी खेली अपने टीम के लिए। टीम जब संकट की स्थिति में थी तो उसमें से उबारा। 2 छक्के जड़े अपनी पारी में हरीश ने। नए बैट्समैन पंकज आए हैं। पंकज के लिए एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन और एक खिलाड़ी कवर में नजर आता हुआ। बहुत अच्छा स्ट्रोक था लेकिन नॉन स्ट्राइकर से जाकर टकराई गेंद। बाउंड्री भी हो सकती थी, एक ही रन बना वहां पर। करारा शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लेकर ताकतवर शॉट, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं गेंदबाज के साथ थी। अपने आप को गेंद की लाइन से अलग नहीं कर पाए भावेश। रन संख्या इस समय 51, 5 विकेटों के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर वाइट का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ। अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए जयेश वखारे, और ज़्यादा तेज करने की कोशिश में कभी कभी हमने देखा है कि गेंदबाज वेवर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आखिरी ओवर में वखारे को अखाड़े में उतारा है भावेश पवार ने। और ये पटक दिया उन्होंने। यस, विकेट हासिल करते हुए बहुत खूबसूरत गेंद वखाड़े की। अंजुमन के शहबाज कप्तान हमसे जुड़ते हुए, जमशेद भी उनके साथ, आप दोनों का इस्तकबाल है। ये देखिए किस तरह से ऊपर खेल बैठे थे, थ्रू दी लाइन खेला था, क्लीन बोल्ड। कहीं भी गेंद की लाइन में नहीं थे बैट्समैन, अंदर की तरफ आई थी, थोड़ा बाहर खेल रहे थे वहां पर, नजरें गेंद पर नहीं थी। एक अनुमान में ही बल्ला चलाने की कोशिश, बिना कोई रन बनाए आउट हो गए भावेश। इस पारी में 2 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं, तुषार और भावेश। 3 बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंचे हैं। नए बैट्समैन कल्पेश, ड्राइव लगाने की कोशिश, रफ्तार में चकमा देते हुए जयेश वखारे। अच्छा ओवर साबित होता हुआ, 2 सफलताएं प्राप्त की है और केवल 4 रन अभी तक इस ओवर में खर्च किए हैं। जो रफ्तार चाहिए थी आखिरी ओवर में जानी स्पोर्ट्स को, वो नहीं मिली है। रनों का मानो अकाल पड़ा हुआ है इस आखिरी ओवर में। पारी की अंतिम गेंद लेकर जयेश वखारे, ड्राइव किया है उसको, डीप में से जब तक थ्रो पहुंचता भावेश पवार का, अंडरआर्म थ्रो किया था उन्होंने। 2 रन। ओवर और पारी की समाप्ति होती हुई तो कुल मिलाकर अपने 6 ओवर्स में 54 रन बनाए हैं जानी स्पोर्ट्स टीम ने, 6 विकेटों के नुकसान पर। 55 रनों की चुनौती धनेश 11 कुक्से के सामने मुकाबला जीतने के लिए। क्या कुछ होगा धनेश 11 की पारी में, देखेंगे थोड़ी ही देर में। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। हम यूं गए और यूं आए, तब तक आप सुनते रहिएगा कुछ मधुर संगीत।
हमारे बीच में बुराक वेलफेयर सोसाइटी के रफीक भाई और कादर भाई तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शाम है दोस्तों। और आइए इस खूबसूरत शाम के आखिरी इनिंग की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं क्रिकेट एंडलेस उप महापौर कप 2017 में आप सभी का इस्तकबाल है। हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है और जख्म देता है हर रोज मुझे एक नया, मेरे महबूब ने किस्तों में सजा रखी है। आइए इस शाम की तरफ जहां पे लक्ष्य रखा है मैच को जीतने के लिए 55 रनों का धनेश कुकसे के लिए। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर जयेश पाटिल और शेखर दलवी। एक सोच बहुत अच्छी रही कि जयेश पाटिल को अब ऊपर भेजा जा रहा है। आपको तो पता है सचिन तेंदुलकर पहले मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनको एक मैच में ऊपर भेजा और वहीं से वो फिर क्रिकेट की तमाम बुलंदियों को छू गए। वही कुछ बात वीरेंद्र सहवाग के लिए भी लागू होती है। मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, वो तो बतौर ऑफ स्पिनर आए थे, लेकिन सौरव गांगुली ने उनको मौका दिया और बहुत ही जबरदस्त सलामी बैट्समैन बनकर उभर गए। To openers on the ground, Shekhar Dalvi and Jayesh Patil is going to be Mahesh Kabukar open the bowling attack. Right arm over the wicket. He is a side arm bowler. First ball tucked away. Yes, he's out. What a magnificent taken. And there is a shouty supporters of Johnny Okap. What a catch. An absolute beauty from mid-wicket fielder. It was going over his head. Good timing of jump there. Have a look at that. It was a juicy full toss delivery. Work it on the onside. He could not keep it down, and Shekhar Dalvi is out on very first ball. Yes, very happy man. Captain Aresh is there because Kabukar takes the very important wicket of Shekhar Dalvi, who is out for duck. In place of Shekhar, Kumar is the new batsman in. Not for one wicket, chasing a target of 55. Beautiful evening here. Now, there is a lot of crowd watching the match. Good support for Johnny Sports in particular. And this is what they exactly wanted, an early breakthrough. Yes, Amir Siddiqui with us, the son of Ahmad Siddiqui. Not for one wicket. Is going to be Mahesh Kabukar. But the fielder is mid-wicket. What a control, what a kabu on ball. Kalpesh is there, taken an outstanding catch, rapid one comes to him. Kabukar, right arm, round wicket. Goes to Kumar, chipped away in the air, over the infield, no chance to Kumar. And finally cut off inside the boundary line. Kumar off the mark with couple. Not a confident looking stroke. Half drive, but just over the mid-off. And this is what you need to do in power play overs. Once you clear the infield, there are a lot of runs for the batsman. Mahesh Kabukar. This time swung over mid-wicket for 6. What a shot. Right out of the screws. Fantastic strike from Kumar. This is one of his favorite shots. Have a look at that. Big slog over the onside. Hikes it. Wasn't a bad delivery around the off stump. Slightly half volley. Cross batted his stroke. Swung away. All the way to the mid-wicket for a 6. 8 for the loss of 1 wicket. Dhanesh 11.
This time slower one, check his stroke and loose bottom and push on the onside. And with the stroke, batsman through for one. Score moves up to 9 for the loss of 1 wicket. That was a very good change of pace, clever thinking from Mahesh Kabukar, but in the end equally well played by Kumar. Sensible batting. Is a 9 for the loss of 1 wicket. And there we watch Mahesh Kabukar facing him Jayesh Patil. This time Jayesh goes his back foot, classic cut shot, control cut shot. First bounce to Gali, and with the stroke, batsman through for one. He off the mark with one, and Danish Kukse 10 for the loss of 1 wicket. Was in total control there, Jayesh Patil. Played it very late. Amir Siddiqui with us. And there we watch Kabukar. This time not a very good stroke, but ball is travelling to backward square leg. Nice return, 1 to score now. And that marks end of the first over. 11 for the loss of 1 wicket. Although Danish 11 have lost a wicket on very first ball, it's been very good going for them. एक ओवर की समाप्ति 11 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। यहाँ पे कुछ ना कुछ अधिक करना होगा अगर मैच में रहना है जानी स्पोर्ट को रहना है तो जान की बाजी वाली गेंदबाजी करना होगी। लगातार विकेट्स निकालने होंगे उनको, क्योंकि बहुत ही गहराई है दनेश 11 के बल्लेबाजी में। और खास बात यह है कि उनके जो भी बैट्समैन आते हैं वो काउंटर अटैक करना जानते हैं, पंछी उड़ान भरते हुए आसमान में। पंछी उड़ान भरते हुए आसमान में। शाम का वक्त है, गेंदबाजी कर रहे हैं कल्पेश। पहली गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर स्लाइस किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रन। इस पर तो केवल बल्ला चलाना था कुमार को, वही काम करते हुए। बहुत खराब गेंद थी, काफी जगह दी थी, फुल टॉस थी, तोहफा मिला कुमार को, बहुत आसानी से खेल दिया। सौरव गांगुली कभी कभी इस तरह के शॉट्स खेलते थे, फ्लैशी स्लाइस किया तो वहां पर कुमार ने। इस मरतबा छोटी गेंद और कुमार आउट। शरीर के करीब कट शॉट खेलना चाहते थे, जगह नहीं दी थी और यही नतीजा निकला कि आउट हो गए। पंद्रह रन 2 विकेट कमाने के बाद नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अजय भुईर। ये जो स्थिति है मैच की, ये अजय भुईर के लिए बहुत अच्छी है, उनको सूट करती है। अंपायर शकील कोटी पड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे अजय भुईर को। उन्होंने गेंद का सामना नहीं किया, गेंद चेक की और गेंद थमा दी गेंदबाज को। ये अजीब ट्रेंड है हमारे टेनिस क्रिकेट में, सिक्सर लगने के बाद भी गेंद चेक की जाती है। इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, अच्छा पुश, कॉपी बुक स्टाइल में एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 16 पर। कल्पेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए।
अच्छा ड्राइव, लेकिन फॉलो थ्रू में चूक होती भी 1 रन पूरा। हालांकि आगे रखा था और बहुत जल्दी नीचे बैकलीप का इस्तेमाल करना पड़ा था बैट्समैन को। 1 रन से स्कोर 17 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। मैच जिस तरह आगे बढ़ रहा है, कहाँ कुछ नहीं जा सकता है कि आखिर तक जाए, लेकिन वो ड्रॉप सीन वाले कभी भी आ जाएंगे। इस मर्तबा अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए वाइट। अब 2-3 गेंदें अच्छी की थी उन्होंने, कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाए, भटक गए अपनी दिशा से। लगातार अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी दिनेश 11 के विरुद्ध। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। गेंद जमीन के सहारे पहुंची आउटफील्ड में, 1 रन बनता हुआ। बहुत ही जूजी गेंद थी। 1 रन से 19 पे पहुंचा स्कोर। उछाल सकते थे गेंद को, कोशिश भी हुई थी लेकिन थोड़ी नीचे लगी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद, अपील कोर्ट बिहाइंड की और जयेश पाटिल आउट। बड़ी विकेट। बड़ी मछली हाथ लगती हुई निर्णायक विकेट साबित हो सकता है इस मैच में। पाटिल ने खेला था, गेंद में मोमेंट भी था। टिप्पा खाने के बाद अंदरूनी सिरा, बढ़िया कैच विकेट कीपर का। कप्तान हरीश ने कैच को लपका। आपको याद होगा कि महेंद्रा के विरुद्ध भी सेमीफाइनल मुकाबले में मापुली ट्रॉफी में इसी तरह से आउट हुए थे जयेश पाटिल। नए बैट्समैन भावेश पवार बल्लेबाजी को आए हैं। बहुत ही शानदार कैच लिया विकेट कीपर भावेश ने। हरीश ने कैच लिया। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन भावेश पवार। दिनेश 11 को यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता है। जानी स्पोर्ट्स को लगातार विकेट्स चाहिए। नए बैट्समैन हरफन मौला, खिलाड़ी भावेश पवार। ये गजब के फॉर्म में चल रहे हैं अपने बल्ले से। 2 ओवर 19 रन 3 विकेट। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं हरीश। मैच काबूकर को कंटिन्यू रखा है क्योंकि यहां से वो मैच को काबू में करना चाह रहे हैं, इसलिए काबूकर को लगा है। महत्वपूर्ण ओवर साबित हो सकता है महेश काबूकर का। नहीं, ये शाम का समय बड़ी टीमों के लिए अच्छा नहीं रहता है इस ग्राउंड पे। अच्छी गेंद, आने का इंतजार किया, टैप किया स्क्वाडिश थर्ड मैन पर। काफी समय, 2 रन पूरे। अजय भोईर ने भी बहुत समय हो गया है, एक लंबी पारी नहीं खेली है अपनी टीम के लिए। हालांकि शेखर दलवी अर्धशतक लगा चुके हैं इस सीजन में, लेकिन इस मैच में खाता नहीं खोल पाए। अच्छी गेंद, बैकलिफ को नीचा किया, बहुत खूबसूरती के साथ टर्न किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। तेज थ्रो पहुंचा है लेकिन 2 रन पूरे। बढ़िया सोच वहां पे दोनों बल्लेबाजों की। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। जिस तरह से स्थिति है उसको देखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। बैकलिप मानो थी नहीं उसमें, बल्ला नीचे ही था। ये देखिए, अब एक शॉट मिड विकेट लगाया गया है और फाइन लेग के खिलाड़ी को अब थोड़ा सा वाइडिश किया है। 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। महेश काबूकर जो गेंदों को आगे रख रहे हैं। इस मरतबा ड्राइव किया, फील्डर वहां पे मौजूद है। बहुत तेज थ्रो, लेकिन पहुंच गए अपनी क्रीज में। चाल तो कामयाब हुई थी, जहां पे खिलाड़ी लगाया था वहीं पे खेल बैठे थे। हालांकि खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड में, अंदर लगी थी बल्ले के। अच्छा थ्रो भी आया था, लेकिन सही निर्णय अंपायर का। आजादी से रन नहीं बन रहे हैं।
24 रन। आने वाले बल्लेबाजों में हम देखें तो महेंद्र मागे, विक्की म्हात्रे और मनोज पाटिल का आना बाकी है। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है दिनेश कुकसे के पास। स्कोर इस वक्त 24 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। काबू कर, तेज गेंद आने का इंतजार किया, फ्लिक किया ऑन साइड में, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए निकल पड़े, तेज थ्रो, डायरेक्ट हिट और आउट हो गए भावेश पवार। बड़ा झटका, और ये झटका महंगा भी पड़ सकता है। डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पे लगा। मैच में काफी रोचकता इसी की दरकार थी कहीं ना कहीं जानी स्पोर्ट्स को।
क्या हो रहा है यहाँ पर? जानी स्पोर्ट ने तो जान लगा दी है इस मैच में, और अजय भुईर थोड़ा क्रिस बॉक्स से खेले थे। बड़ी मछली, मैं समझता हूं कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट विकेट हो सकता है अगर धनेश कुक से मुकाबला हार गई तो। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, फिर से सिंगल के लिए देख रहे थे। फुटवर्क पूरी तरह से साथ नहीं दे पाया, पैर पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला था। अगला ये देखिए, रिप्ले में देखते किस तरह से खेले थे, टेंटेटिव फुटवर्क। बिल्कुल अधूरे मन से, जो अगला पांव था उसको पूरी तरह बाहर नहीं खींच पाए थे अजय भुईर। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हालांकि खेल रहे थे। कितनी विकेट गिरे? 6 विकेट गिरे। 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी पिच पे मौजूद है, लेकिन रिकॉग्नाइज बैट्समैन सिर्फ विक्की मात्रे। अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है और अख्तर बल्लेबाजी को जा रहे हैं। जी हाँ, अख्तर मूलतः अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि क्षमता है उनमें, बल्लेबाजी कर सकते हैं। 2 ओवर में 19 रनों की जरूरत। अब देखना है कि क्या जानी स्पोर्ट शेर निकलने के बाद धूम को पकड़ पाती है। हाथी चला गया, पूछ बाकी है। विक्की मात्रे और अख्तर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कल्पेश को फिर से याद किया है कैप्टन ने। पारी का दूसरा ओवर किया था, 8 रन दिए थे और 2 सफलताएं प्राप्त की थी, तो विकेट्स इनके खाते में भी चले गए हैं। फुल टॉस पैर पर लगी थी, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। आउटफील्ड में जाती हुई गेंद। 2 मर्तबा बच गए वहां पे विक्की मात्रे, और देखिए अपील करते रहे और वहां 2 रन भाग दिए। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यस, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। अच्छा निर्णय अंपायर का, फारूक बर्डी का, क्योंकि पैर जो इम्पैक्ट था वो ऑफ स्टंप के बाहर था। खास बात तो ये थी कि उनका एक पैर ऑफ स्टंप के बाहर था, दूसरा लेग स्टंप के बाहर था, और उसी में तो 2 रन भी बन गए, क्योंकि अपील करते रहे, 2 रन भाग लिए। तीनों भी स्टंप्स दोनों टांगों के बीच में थे। ऐसे में स्ट्रोक भी खेला गया था, तो एलबीडब्ल्यू मिलना बहुत ही मुश्किल। अब 11 गेंदें और 17 रन। खाता खोलना बाकी है अभी भी दोनों भी बल्लेबाजों को। दबाव क्या रहता है? आपने देखा कि फुल टॉस गेंद भी बल्ले पे नहीं आएगी। कल्पेश हाजी समझ से टेंट से, ये आ गई बल्ले पर और जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन। खराब गेंद और सही नसीहत। विक्की मात्रे अंजुमन ट्रॉफी के फाइनल में भी बहुत लड़ते रहे थे, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अगड़ी राजा में की थी। यहाँ पर अपने टीम के लिए मैन ऑफ क्राइसिस बनते हुए इतनी लूज गेंद ऐसे समय पे मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इससे पहले बच गए थे गेंदबाज, पहली गेंद भी फुल टॉस की थी, लेकिन बार बार यदि आप गलती को दोहराओगे तो विक्की मात्रे जैसे बल्लेबाज बख्शने वाले नहीं है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 44 रन। अजय गलत, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो 8 कप हुए, 3 धनेश ने जीते, 3 महेंद्रा ने। तीनों का इतिहास उठा के देखिए, धनेश भी बहुत स्ट्रगल करके कोई हारा हुआ मुकाबला जीती है तो जीती है, सही है। ऐसा महेंद्रा के साथ भी किसी टीम की सरताजी नहीं रही है इस सीजन में। कंपटीशन कितना बढ़ गया है, नई टीमें भी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बार पुल किया है, फील्डर से पहले ही टप्पा खाया था गेंद ने। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 1 ही रन। इस 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदें बची है 9 और रन चाहिए 10। बिल्कुल, यहाँ पर धनेश के लिए एक ये है कि उसके 4 बैट्समैन बचे हैं, इक्वेशन इतना मुश्किल नहीं है, और विक्की मात्रे वहाँ रहेंगे तो फिर धनेश की विजय पक्की। दोनों भी बायात के बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफसाइड में नजर आते हुए।
विकेटों के पीछे खेलने का इरादा था, स्टंप्स के ऊपर से गुजरती हुई गेंद, महत्वपूर्ण डॉट बॉल। अभी अख्तर को भी क्या पता था कि ऐसी सिचुएशन में उनको बल्लेबाजी आएंगी। दबाव की स्थिति में जब बल्लेबाजों को पसीने छूटते हैं तो फिर टेल बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल रहता है। एक बार फिर से कल्पेश, बहुत बढ़िया गेंद, किनारा लगा था, बाउंस पर पहुंचती हुई विकेट कीपर के पास, फिर से कोई रन नहीं। डॉट बॉल तो मानो सोने की बिंदी की तरह है जानी स्पोर्ट्स के लिए। 7 गेंदों में अब चाहिए 10 रन। ये गेंद इस मैच का रिजल्ट तय करेंगी कि ये गेंद में जो कुछ भी होगा वो लगभग मैच के परिणाम पे बहुत बड़ा असर डालेगा। ये गेंद कीमती हो चुकी है जो कल्पेश डाल रहे हैं और सामना कर रहे हैं अख्तर। बहुत ही रोमांचक मैच। डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 की इस समय बल्ले बल्ले होती हुई। हाजी समझ से टेंट से राइट आर्म राउंड द विकेट कल्पेश, शफल करते हुए खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। देखना है जयेश पाटिल यहां से कह रहे अख्तर को कि आपको आखिरी गेंद को डिफेंड नहीं बल्कि मारना है। प्लानिंग, देखना है क्या होता है इस गेंद पर। लॉफ्टेड शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर फंबल होता हुआ, सफाई से रोक नहीं पाए थे। बाउंड्री बचाने में जरूर सफल रहे फील्डर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण रन धनेश 11 के खाते में जाते हुए खाता खुलता हुआ अख्तर शेख का। ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस समय 48 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अजय गरत कहीं ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आखिरी मुकाबला क्या देखा जाए, धनेश बनाम जानी है। धनेश को कौन हरा सकता है या धनेश को कौन चुनौतियां दे सकता है, लेकिन चुनौतियां तो बहुत जबरदस्त सब हैं क्योंकि 6 गेंदों में 7 रन चाहिए, 7 रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। एक बात आपने गौर की है, शकील कोटी जिस मैच में अंपायरिंग करते हैं वो मैच बहुत लंबा जाता है। बिल्कुल, अभी तो जब टॉस जीत के बैटिंग ली थी जानी ने तो उन्होंने फोन कर दिया था कि वो पहुंच रहे हैं 5:30 तक। आप आमिर सिद्दीकी को देख रहे हैं, नवाब उनकी बगल में, इरशाद कुरैशी। 1 ओवर 7 रन, मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। और गेंदबाजी के लिए पंकज। दिन भर मनोरंजन हो रहा है दर्शकों का इस ट्रॉफी में, और होता रहेगा क्योंकि जुमा को हमारे बीच रहेंगे शक्ति कपूर और वो आने वाले, और रजा मुराद रहेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही मशहूर शेखर खामकर, सुहास खामकर, बॉडी बिल्डर। छह गेंदे 7 रन। रोचकता अभी भी बरकरार है खेल में। गेंदबाजी के लिए पंकज, राजू, शॉर्ट पिच गेंद, पुल और पावरफुल 6 रन। कहा था ना मैंने कि विक्की मात्रे अगर आखिर तक वहां टिक गए तो धनेश की विजय पक्की है। दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी, पटका था वहां पर पंकज ने, खराब गेंद, और ये तो बहुत आसान गेंद है विक्की मात्रे के लिए। हालांकि दबाव की स्थिति में किसी भी बैट्समैन के लिए कोई भी गेंद आसान नहीं होती है। स्कोर्स लेवल, केवल 1 रन अब चाहिए धनेश 11 को। कट किया गेंद को, और इसके साथ ही आज की शाम पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुकसे के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन धनेश कुकसे, कैप्टन भावेश पवार, हार्ड लक जानी स्पोर्ट। आइए इस मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसका नाम है द रन मशीन ऑफ भिवंडी, विक्की मात्रे। विक्की मात्रे इज द मैन ऑफ द मैच।
भाई के हाथों से वेल प्लेड विकी। उसके बाद आपको रफीक भाई ये गिफ्ट हैम्पर देंगे और आखिर में शहबाज भाई आपको मिठाई देंगे, अंजुमन के कप्तान। विकी मात्रे आज शाम के मैन ऑफ द मैच। विकी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू प्लेड अ सुपर्ब नॉक इन प्रेशर सिचुएशन। आपको बधाई हो। विकी, ये बताइए कि गर्म पानी, मेरा मतलब है प्रेशर में खेलने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी रहता है वो निखर जाता है। ये बताइए कि कब आपको लगा था कि मैच में प्रेशर बढ़ गया है? नहीं, जब भावेश पवार का मतलब 1-1 हिट हो गया तो वहां से लग रहा था कि मैच का लग पलट रहा है, लेकिन ठीक है, बैट्समैन हम लोग के पास भी टेलेंडर भी बहुत अच्छे हैं। एक बात बताइए कि आपने जो आज बारी खेली प्रेशर सिचुएशन में वो लाजवाब थी। क्या लगता है कि आज जो बल्लेबाजी में गलतियां हुई है धनेश आगे उसके ऊपर सोच कर आएंगी? हाँ, वो तो अच्छा है, लेकिन क्रिकेट है सर, होता रहता है। और ये बताइए कि विक्की मात्रे अपने तरफ से हमेशा इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे और एंटरटेनमेंट करेंगे? हाँ, ख्वाहिश तो यही रहती है। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये थे विक्की मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी। तो आज का शेड्यूल यही होता है खत्म। मैं आपसे लेता हूं विदा। अपना